بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار اپنے پیر و مرشد عزیز الاولیاء سرکار سے کیسے بیعت ہوئے اور کہاں بیعت ہوئے۔ پھر ہمارے پیر و مرشد کی زبانی جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد ہمارے پیر و مرشد نے چائے ناشتہ کیا اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار نے کہا، بیٹے اب آپ لوگ اپنے اپنے مقام پہ جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ سب لوگ سرکار شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار سے ملے، قدم بوس ہوئے ان کی بارگاہ میں، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر کے لیے لوٹ پڑے۔ سب آئے اپنے گھر پہ اور سب اپنی پڑھائی لکھائی میں لگ گئے، لیکن ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار کا دل لگا نہیں۔ کہیں بھی آپ جاتے، کتاب کھولتے، کاپی کھولتے، جو کچھ بھی کرتے، آپ کو اپنے پیر و مرشد کا چہرہ ہی نظر آتا۔ ہر طرف جدھر دیکھتے آپ کو شہید ملت ہی نظر آتے۔ آپ کو اتنی تڑپ ہو گئی اپنے پیر و مرشد کی، اتنی تڑپ ہو گئی کہ آپ جو ہے ایک لمحے کو بھی ان کے بغیر رہنا گوارا نہیں سمجھتے تھے، مطلب اچھا نہیں لگتا تھا ان کو۔ کہیں بھی آپ جاتے تھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، نہ پڑھنے میں اچھا لگتا، نہ لکھنے میں اچھا لگتا، نہ گھر میں اچھا لگتا، نہ باہر اچھا لگتا۔ ہر طرف ہمیشہ ان کو اپنے پیر کی یاد ستانے لگی۔ وہ بہت پریشان ہو گئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنے پیر و مرشد سے جا کے ملنا چاہیے اور یہ واقعہ دریافت کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار نے پروگرام بنایا اور اکیلے ہی بھیسوڑی شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ بھیسوڑی شریف اپنے پیر و مرشد کے دولت کدے پہ پہنچے، یعنی خانقاہ حسنی عزیزی میں جب پہنچے، بھیسوڑی شریف جب اپنے پیر و مرشد کے دولت کدے پہ پہنچے، خانقاہ میں پہنچے، تو آپ نے آواز دی تو اندر سے آپ کی پیرانی حضور تشریف لے آئی۔ پہلی ملاقات تھی آپ کی اپنے پیرانی حضور سے۔ آپ نے ادب سے ان کی دستبوسی کی، اور تو دادی امی نے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آئے، کون؟ اچھا، اس سے پہلے یہ کہ جب ہمارے پیر و مرشد بھیسوڑی شریف پہنچے تو شہید ملت عزیز الاولیاء سرکار بھیسوڑی شریف میں نہیں تھے، آپ کہیں سفر پہ گئے تھے۔ تو دادی امی نے ہمارے پیر و مرشد سے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئے؟ تو ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار نے بڑے ادب سے آپ سر جھکاتے ہوئے نرم انداز میں کہا، پورن پور سے۔ پھر دادی امی نے پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بڑے ادب کے ساتھ کہا، کامل۔ بولے اچھا، بولے بیٹا تمہارے میاں حضور تو سفر میں گئے ہیں، لیکن شام تک وہ واپس آ جائیں گے، اور اب تم اپنے پیر و مرشد سے مل کے ہی جانا، کیونکہ اتنے دور سے آئے ہو تو مل کے ہی جانا، اور رکو یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ اندر گئیں اور اپنے ہاتھ سے ہی کھانے پینے کا سامان وغیرہ لے کے آئیں، اور کہا، بیٹا بڑی دور سے آپ آئے ہو، اسے کھا لو اور یہیں پہ آرام کرو، یہ دالان ہے، یہیں پہ آرام کرو، اور آپ کے پیر و مرشد شام تک آ جائیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار نے بڑے ادب سے کہا، جی حضور اچھا ہے۔ پھر آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پلیٹ وغیرہ آپ اندر دھو کر رکھ آئے، اور آپ وہی دالان میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور آپ جیسے ہی لیٹے آپ کو بہت گہری نیند آ گئی۔ اتنی گہری نیند آ گئی
ऐसा लगता था कि आपने बरसों से सोया नहीं और वहीं पे सो रहे, मतलब सो गए बेफिक्र होके। ऐसा लगता था कि कभी सोए नहीं और आज ऐसे सो रहे कि इन्हें होश ही नहीं है। मतलब आप बिस्तर से जमीन पे चले गए। उस वक्त कच्चे मकान होते थे, मिट्टी में लेट गए और आपको होश भी नहीं कि हम बिस्तर पे हैं या जमीन पे लेटे रहे। इतने में आपके कानों में एक मीठी सी, भीनी भीनी सी, प्यारी सी आवाज आई, कामिल कामिल। ऐसा लगा कि उनके कानों में किसी ने चाशनी घोल दी। आपने अपनी आंखें खोली और देखा तो उनके पीरो मुर्शिद शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार सामने खड़े थे। आपने देखा तो आप ये सोच रहे थे कि अरे यार, ये शायद ख्वाब है। आप ये सोचे, आदमी नींद में होता है, अचानक से कोई बात होती है तो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये हकीकत है कि ख्वाब है। तो आपको ऐसा लगा कि हमारे ख्वाब में ही हमारे पीरो मुर्शिद हमें बुला रहे हैं। फिर शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार ने फरमाया, कामिल बेटा तुम कब आए? तब आपको लगा कि नहीं, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। आप उठे, फौरन ही झटके से उठे और अपना सर अपने पीर और मुर्शिद हजरत शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार के कदमों पे रख दिया और खूब रोए, जार जार होके रोए, दहाड़े मार मार के रोए। इतना रोए कि जो दादा हुजूर हमारे शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार के साथ थे वो परेशान हो गए। बोले यार, ये अचानक इस बच्चे को, लड़के को क्या हो गया? शहीद मिल्लत सरकार ने उन्हें फौरन ही उठाया और अपने सीने से लगा लिया और इतने देर तक लगाए रहे, बहुत देर तक लगाए रहे, जब तक आप चुप न हो गए। उसके बाद थोड़ी तसल्ली हुई तो आपने अपने किसी मुरीद को आवाज दिया और पानी मंगाई। पानी मंगाने के बाद आपने आपको हमारे पीर और मुर्शिद को बिठाया और बिठाने के बाद पानी पिलाया। जब थोड़ी तसल्ली हो गई, सुकून मिल गया, तो आप हमारे दादा मियाँ अंदर गए और अंदर चले गए। जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त मगरिब हो चुकी थी। मतलब आप इतने देर तक सोते रहे कि आपको पता नहीं कि कब मगरिब की अजान हुई और कब मगरिब की नमाज हुई। सोते रहे और मगरिब बाद शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार ने उन्हें उठाया। फिर इशा बाद आपने दस्तरखान बिछवाया और तमाम जितने भी मेहमान थे आपके साथ जो आए थे सबको बुलाया गया। हमारे पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा सूफी अजीजी कामिल मियाँ सरकार क़ुद्दसहुल अज़ीज़ को भी बुलाया गया और बुलाने के बाद दादा मियाँ ने हमारे पीर और मुर्शिद को अपने पास ही बिठा लिया। बोले कामिल तुम मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो। खाना लग गया, लोग खाना खाना शुरू कर दिए। शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार सबको छेड़ते थे, मजाकिया अंदाज में सबको छेड़ रहे थे। हमारे दादा पीर के साथ बहुत सारे लोग चला करते थे, जिसमें सुल्तानुल औलिया सरकार क़ुद्दसहुल अज़ीज़ के खुलफा भी साथ होते थे, जिसमें से एक, जहां तक हमें याद है, जिसमें से एक थे हजरत ख्वाजा सूफी मौलाना आसिफिया क़ुद्दसहुल अज़ीज़। आप दादा मियाँ शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार के साथ हमेशा उस दौर में साथ में रहते थे और साथ में सफर में चलते थे। इधर जब दस्तरखान पे दादा हुजूर ने मजाकिया अंदाज में अपने मुरीदों से मजाक कर रहे थे, मौलाना आसिफिया से भी कर रहे थे। इतने में आपकी कैफियत जो है रुख चेंज हो गया, कैफियत बदल गई और कहा मौलाना ये कामिल है। तो मौलाना आसिफिया ने कहा जी हुजूर। फिर कहा मौलाना ये कामिल है। फिर मौलाना आसिफिया ने कहा जी हुजूर। फिर बड़े जलो जलाल में
कैफियत बदली हुई है, अचानक मजाक करते हुए एकदम कैफियत बदल गई आपकी। फिर आपने कहा तीसरी बार कि मौलाना ये कामिल है। तो मौलाना आसिफिया ने बेशक कहा, बेशक हुजूर ये कामिल ही है। फिर अचानक आपका मूड तब्दील हुआ, बदला, और फिर आप जो है अपने मुरीदों को, पीर भाइयों को छेड़ने लगे। ये मंजर जो है, ये माजरा जो है, ये सीन जो गुजरा, ये आप हमारे दादा हुजूर शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार मौलाना आसिफिया से ये कहना चाहते थे कि ये मुकम्मल है। ये लड़का तुम देख रहे हो, इसे बच्चा मत समझना, आने वाले वक्त का ये कामिल फकीर है। सुभान अल्लाह, क्या बात। उसके बाद जो है दादा हुजूर शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार हमारे पीर और मुर्शिद से मुखातिब हुए, पूछे कि बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? 10वीं का एग्जाम, इम्तहान तुम्हारा कब है, पेपर कब है? तो हमारे पीर और मुर्शिद ने बड़े धीरे से नरम आवाज में कहा, हुजूर अगले महीने में है। बोले अच्छा, अगले महीने में है, तो कल सुबह तुम फजर के बाद आप निकल जाना और खूब दिल लगा के पढ़ना, और मेरे मियाँ ने चाहा तो तुम पास हो जाओगे। और सुनो, तुम अब दोबारा मत आना, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। मतलब आपने इसलिए ये बात कही कि ये तुरंत इनको याद सताए, परेशान हो तो ये फौरन तुरंत बैसोरी शरीफ ना आ जाए, तो इसीलिए ताकीद किया कि तुम मत आना, मैं खुद पूरनपुर आऊंगा और फिर तुम्हें आगरा सैयदना पाक लेके चलूंगा। तुम बैसोरी शरीफ नहीं आना, मैं खुद पूरनपुर आऊंगा और तुम्हें सैयदना पाक में ले चलूंगा। सफर है, उनका उर्स है, फिर तुम्हें ताजमहल भी दिखाऊंगा। क्या बात। एक पीर और मुर्शिद ने अपने मुरीद की दिल की बात को समझते हुए ये बात कही। और सुबह चले जाना और खूब दिल लगा के पढ़ना, और इम्तिहान में पास होना है तुम्हें। हमारे पीर और मुर्शिद सुबह उठे, नाश्ता वगैरह के बाद जो है बारगाह मुर्शिद में शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार की बारगाह में कदम बोस हुए और आप रवाना हो गए। पूरनपुर आए, आने के बाद 24 घंटा आपको इस बात की खुशी थी कि अब तुरंत फौरन ही जल्द से पेपर हो जाए और मैं अपने पीर और मुर्शिद के साथ आगरा सफर में जाऊंगा। यही जुस्तजू में लगे रहे और इसी जुस्तजू में आपने अपना पेपर दे दिया, इम्तिहान दे दिया, और अपने पीर और मुर्शिद शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया सरकार की इंतजार में दिन और रात काटते रहे कि अब हमारे पीर और मुर्शिद आएंगे, अब हमारे फला दिन हमारे पीर और मुर्शिद आएंगे और हम उनके साथ आगरा सफर में जाएंगे। 24 आवर्स, 24 घंटा उनकी ही सूरत, उनका ही चेहरा उनके नजरों में घूमता रहा। शहीद मिल्लत ही दिखते रहे कि हमारे पीर और मुर्शिद आएंगे और हम उनके साथ आगरा सफर में जाएंगे। ये एक मुरीद का सच्चा पक्का इश्क है, जो खुद भूल जाए, अपने सारे काम, अपने सारे ख्वाहिशात को भूल जाए, अपने सारे टारगेट को भूल जाए और सिर्फ उसका ही चेहरा याद रह जाए। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब इससे आगे की कहानी जो है, आगे का वाकया जो है, हम अगले एपिसोड में बताएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपको ये दास्ताने हजरत ख्वाजा सूफी अजीज कामिल मियां सरकार क़ुद्दसरुल अज़ीज़ पसंद आई तो आप कमेंट में जरूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए भी बताएं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, मशवरा भी दे सकते हैं आप लोग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔